children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Managing Files and Folders. Chapter outline. Windows Explorer, creating and opening a folder, moving or copying a file folder, deleting a file folder, restoring a file or folder, searching a file or folder, sorting files, and working with multiple applications. Windows Explorer. Windows Explorer is an application that provides detailed information about files, folders, and drives. It helps us to manage and organize your files and folders. We can use it to view, create, delete, copy, move, rename, and search files and folders. देखिए ये आपका एक एप्लीकेशन है जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइल्स के बारे में, फोल्डर्स के बारे में, ड्राइव्स के बारे में. इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें. ओके इस और हम व्यू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके रीनेम कर सकते हैं एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स. Open Windows Explorer. To open Windows Explorer, click on the Start button, All Programs, Accessories, Windows Explorer option, or click on the Start button and select Computer option from the right pane. The Windows Explorer window appears. चलिए देखिए इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे आपका स्टार्ट बटन. ओके देन ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड विंडोज एक्सप्लोरर. ओके एंड दूसरा मेथड क्या है देखिए, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर ऑप्शन को राइट पेन से एंड ये जो विंडोज एक्सप्लोरर विंडो आपकी अपीयर हो गई. राइट. क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फोल्डर. वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. क्रिएटिंग अ फोल्डर. Right click on the blank area of the desktop. A shortcut menu appears. Place a pointer on the new option. A list of sub options appears. Click on the folder option. A new folder icon will be displayed on the desktop. Type a name for the folder at the cursor position and press the enter key. A new folder is created. A folder कैसे create करेंगे? सबसे पहले आप click करेंगे desktop के blank area पे right click. Okay? अब आपका शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हुआ. फिर हम न्यू ऑप्शन पे रखेंगे पॉइंटर को और देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस आपके अपीयर हो रहे हैं. फिर हम क्लिक करेंगे फोल्डर पे, एक न्यू फोल्डर आइकन का डिस्प्ले हो रहा है. ओके हम नाम कोई भी टाइप कर सकते हैं और प्रेस करेंगे एंटर की और ये हमारा न्यू फोल्डर बन गया. मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर. मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर. Moving a file or folder means shifting it from its original location to another location, destination, whereas copying a file folder means to create a duplicate copy of the selected file or folder. देखिए फाइल या फोल्डर को मूव करने का मतलब है कि उसको शिफ्ट करना उसके ओरिजिनल लोकेशन से यानी कि सोर्स से दूसरे लोकेशन यानी डेस्टिनेशन पे. जबकि कॉपी का मतलब तो आपको पता ही है कि डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना जो भी फाइल या फोल्डर सिलेक्टेड है. राइट. तो चलिए देखते हैं. To view the contents of D drive, double click on the computer icon on the desktop. It will display the hard disk drives, CD DVD drives, removable devices, and the network locations that are connected to a computer. Now double click on the D drive icon. It will display all the files and folders stored in it. Select any file or folder that we want to move or copy. Click on the organize button and select the cut copy option from the drop down menu. From the left pane, select the drive where we want to move or copy the file, say E. Now click on the paste option in the organize drop down menu. Notice that the file gets moved, copied to the new location. Okay. अब आपको देखिए करना क्या है. इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर आइकन पे जो डेस्कटॉप पे है. अब देखिए आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके अब आप डबल क्लिक करेंगे ये जो D ड्राइव आइकन है ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को दिखाएगा जो इसमें स्टोर्ड है. अब इसमें से हम कोई भी फाइल फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं. अब हम क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज बटन पे, सिलेक्ट करेंगे कट कॉपी ऑप्शन. ओके अब लेफ्ट पेन में हम सिलेक्ट करेंगे ड्राइव जहाँ पे हम मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं फाइल को. ओके अब हम क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन पे, ये जो आपके ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन मेन्यू में है. अब देखिए फाइल आपकी मूव हो गई, कॉपी हो गई इस न्यू लोकेशन पे. राइट. नेक्स्ट, मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस.
To move a file folder from one device to another, say from D drive of your computer to a pen drive. Follow these steps. Attach the pen drive to your computer. Now, right click on the start button and select the Open Windows Explorer option. Select D drive from the navigation pane on the left. Okay. Select the file folder that we want to move to the pen drive. Right click on the file folder and select the cut option from the shortcut menu. Click on the pen drive icon from the left pane. The drive opens up. Right click on the blank area in the right pane and select the paste option. We will observe that the selected file folder is shifted from the D drive of your computer to the pen drive. Whereas when we use copy option, the file folder does not move from its existing place, rather it gets copied to the other drive. अच्छा, अब देखिए आपको क्या करना है. आपको मूव करना है या कॉपी करना है फाइल और फोल्डर को स्टोरेज डिवाइसेस के बीच. जैसे कि आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव करना है एक डिवाइस से दूसरे में, माना आपको पेन ड्राइव पे करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स के साथ अपना पेन ड्राइव अटैच करना है. ओके, अब आप राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, सिलेक्ट करेंगे ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन को और इसमें से हमने डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया. ओके, नाउ हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे फाइल फोल्डर जो भी हम मूव कराना चाहते हैं पेन ड्राइव पे. फिर राइट क्लिक करेंगे और कट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. फिर क्लिक करेंगे पेन ड्राइव आइकन पे और ड्राइव ओपन अप हो जाएगा. ओके, फिर हम ये जो राइट पेन है इसके ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है. ओके, एंड देन पेस्ट ऑप्शन. अब देखिए जो आप जिस फाइल को या फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया था ये आपके डी ड्राइव में सिलेक्ट हो गई. ओके, डी ड्राइव से आपके पेन ड्राइव में आपके शिफ्ट हो गई है. और अगर हम जब हम कॉपी ऑप्शन करेंगे यूज, जो फाइल फोल्डर है वो मूव नहीं करेगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी? ये कॉपी हो जाएगी दूसरे ड्राइव में. ओके, स्मार्ट टिप: to copy multiple non-consecutive files and folders, press and hold down the control key and click on the files to be copied. The files will be selected. Now you can copy them. आप multiple non-consecutive files और folders को copy करना चाहते हैं. ओके, तो आपने क्या करना है? प्रेस करना है, होल्ड डाउन करना है कंट्रोल की को एंड क्लिक करना है फाइल्स को. ओके, तो फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी. अब आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं. स्मार्ट टिप: प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट टू डिलीट फाइल्स फोल्डर्स परमानेंटली. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना, उसके लिए आप शिफ्ट प्लस डिलीट कमांड दबाएंगे. ओके, डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर. We can delete the unwanted files or folders from your computer system. To delete a file folder, follow the given steps. Select the file folder we want to delete. Click on the Organize button and select the Delete option from the drop-down menu. A message box appears to confirm the deletion. Select Yes to confirm. We will find that the selected file folder has been deleted. अब आपको कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी फाइल या फोल्डर जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे. ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन, फिर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. फिर एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है ना, जो आपसे कंफर्म करेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं. देन यस, और फिर ये आपका डिलीट हो जाएगा. राइट. Restoring a file folder. The file or folders which are deleted can be restored to their original locations. To restore a deleted file from the recycle bin, double click on the recycle bin folder. Select the file folder you want to restore. Click on the restore this item option on the toolbar or right click on the file folder you wish to restore. Select the restore option from the context menu. The selected file folder disappears from the recycle bin window and gets restored at its original location. अब आपको क्या करना है कि कोई आपने फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया है, उसको रीस्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ये रिसाइकिल बिन से कर सकते हैं. ये जो रिसाइकिल बिन फोल्डर है इस पर आप करेंगे डबल क्लिक. फिर फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसे हम स्टोर करेंगे, रीस्टोर. फिर हम क्लिक करेंगे रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन पे. या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, रीस्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. अब जो फाइल या फोल्डर जिसे हमने सिलेक्ट किया ये रिसाइकिल बिन विंडो से आपका डिसअपियर हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रीस्टोर हो जाएगी. स्मार्ट टिप: to select the consecutive groups of files, click on the first file, hold down the shift key and click the last file.
To select the non-consecutive files and folders, press and hold down the control key and click on the files to be copied. अगर आपको ग्रुप्स ऑफ फाइल सिलेक्ट करना, वो भी कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार है, आप फर्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और फिर लास्ट फाइल पे क्लिक करेंगे. और जो नॉन कंसेक्यूटिव फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो प्रेस करना है और होल्ड डाउन करना है कंट्रोल की को और फिर क्लिक करना है जो फाइल्स आपको कॉपी करनी है. राइट. Smart tip. We can also click the Restore All Items button at the top to restore all the files to their original places. Make sure that no single file is selected at the time. Similarly, we can click the Empty the Recycle Bin button to delete all the files permanently from a computer system. अच्छा, इसके अलावा देखिए आप Restore All Items buttons को भी क्लिक कर सकते हैं जो आपके टॉप पे है, जिससे कि जितनी भी फाइल्स होंगी वो रीस्टोर हो जाएंगी अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे. ओके, बट मेक श्योर कि जो सिंगल फाइल, नो सिंगल फाइल इज सिलेक्टेड एट द टाइम. और इसी तरह से आप क्लिक करेंगे अगर एम्प्टी द रिसाइकल बिन को, तो क्या होगा, सारी फाइल्स आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी आपके कंप्यूटर सिस्टम से. राइट. फैक्ट फाइल. A file is a basic unit of storage in Windows that enables a computer to distinguish one set of information from another. We can save our work as a file on a computer by specifying a name to it. A file consists of two main parts, the file name and its extension. देखिए फाइल आपका बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है विंडोज़ में, जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर. ओके, आप अपने वर्क को सेव कर सकते हैं एज अ फाइल ऑन कंप्यूटर. उसको अगर आप एक नाम दे देंगे. राइट. फाइल में आपके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फाइल नेम और एक होता है इसका एक्सटेंशन. Searching a file or folder. Windows offers a number of ways to find files and folders. Search box offers the most direct way to locate a file. We use search box if we are looking for common file types, right? We remember all or part of the name of the file or folder we want to find. We know the date when we last modified a file. देखिए आपका ये जो सर्च बॉक्स ये क्या ऑफर करता है आपको कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फाइल को लोकेट कर सकते हैं. तो हम इसके लिए सर्च बॉक्स का यूज़ करते हैं. बट कब करेंगे, अगर हम कॉमन फाइल टाइप को सर्च कर रहे हैं या फिर हमें याद है और जितने भी हमें सब याद है और जो पार्ट है या जो नेम है फाइल का या फोल्डर का जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, या फिर हमें डेट याद है जब हमने लास्ट उस फाइल को मॉडिफाई किया था. Smart tip. To rename a file folder, right click on it and select the rename option from the shortcut menu. Type the new name and press the enter key. देखिए अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे उस पर, रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, न्यू नेम टाइप करेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे. राइट. टू सर्च अ फाइल फोल्डर, click on the start button. We will find a search box at the bottom left pane. Type either a part of the file folder name or the complete name, or type a word or phrase that is present in the file. As we type, the items that match our text will appear on the start menu. Select the desired file folder, double click on it. The file will open in a new window. आपको फाइल या फोल्डर को सर्च करना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक. अब देखिए सर्च बॉक्स आपको मिलेगा ये बॉटम लेफ्ट पेन में. तो या तो आप फाइल का नेम टाइप करेंगे या फोल्डर का नेम, या फिर आप कंप्लीट नेम भी कर सकते हैं, या वर्ड टाइप कर दीजिए या फ्रेज टाइप कर सकते हैं. ओके, जो भी आपकी फाइल में प्रेजेंट है. अच्छा देखिए जैसे ही हमने टाइप किया, जो आइटम जो हमारे टेक्स्ट से मैच हो रहा है वो आपका अपीयर हो गया स्टार्ट मेन्यू पे, है ना. अब हम इसमें से कोई भी फाइल या फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम करना चाहते हैं, जिसे हम सर्च कर रहे थे. इस पर डबल क्लिक करेंगे और देखिए आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू विंडो. Search a file using wildcard characters. Wildcards are special symbols that can be used to search a file or folder whose exact name we do not know. There are two wildcard characters, asterisk and question mark, commonly supported in Windows to search any information. अच्छा देखिए वाइल्ड कार्ड ना आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी फोल्डर या फाइल को सर्च करने के लिए जिसका आपको एग्जैक्ट नेम पता ही नहीं. तो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं आपके पास जो कि आपके कॉमनली सपोर्ट किए जाते हैं विंडोज़ में किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टरिस्क. द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टरिस्क कैन बी यूज टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ सर्च टर्म. अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैन बी एनी नंबर और कैरेक्टर. एग्जाम्पल L
*** will search all files whose names start with L followed by any number of characters and have any extension. Example, letter.docx, lottery.pptx, locality.txt and so on. तो देखिए ये जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है हमारे पास एस्टेरिस्क, इसको यूज़ किया जाता है एक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए एक सर्च टर्म में. तो देखिए कैसे करेंगे हम. जैसे हमने एल लिया, ओके, और इस तरह से आपने कमांड देनी है एल ***. अब ये कितने जो भी फाइल्स आपकी एल से स्टार्ट हो रही हैं फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और हैव एनी एक्सटेंशन, वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे. जैसे देखिए एल से ये तीनों ही आपके एल से हो रहे हैं और भी बहुत सारे होंगे, राइट. **docx will search for all the files having the extension as .docx word files. **docx will search for all the files whose name begins with the letter L and have the extension .docx. अच्छा, अब ये जो हमने **docx लिया, ये क्या करेगा, उन फाइल्स को सर्च करेगा जिसमें ये एक्सटेंशन होगा, राइट. और अगर हम दोनों को मिक्स कर दें यानी कि L और जो ये .docx है, तो ये उन फाइल्स को सर्च करेगा जिनका नेम L से शुरू होगा और जिसमें एक्सटेंशन .docx होगा. ओके. Using wildcard character ? The wildcard character ? can be used in place of any single letter or symbol. Example, Vidya ? .docx will search for all the files whose names begin with Vidya followed by any one character and extension as .docx. Example, Vidya1.docx, Vidya p.docx and so on. Vidya, then 3 question marks, .docx will search for all the files whose names begin with Vidya followed by any 3 characters and extension as .docx. The wildcard characters asterisk and question mark can also be used in a combination. The question mark dot asterisk will search all files whose names contain only one character and have any extension. Example, L.docx, R.pptx, E.txt, etc. Vidya asterisk dot 3 question mark will display all files with the name starting with Vidya and any character after that and having any extension of 3 characters. अच्छा देखिए, अब जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको दिया गया है विद्या, तो ये उन फाइल को सर्च करेगा जिनका नाम विद्या से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आपका एक कैरेक्टर होगा, एक एक्सटेंशन होगा, जैसे कि Vidya1.docx. फिर नेक्स्ट केस में आपको दिया गया है देयर आर 3 क्वेश्चन मार्क्स, राइट. इसका मतलब वो उन फाइल्स को सर्च करेगा जो विद्या से स्टार्ट है और उसके बाद 3 कैरेक्टर्स हैं और एक्सटेंशन भी होगा एज .docx. अब ये जो दोनों हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, इनको कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिस्ट. अब ये क्या करेगा, उन फाइल्स को सर्च करेगा जिनके नाम में सिर्फ एक कैरेक्टर है या एक एक्सटेंशन है, ओके, जैसे कि L.docx. अब इसके बाद जैसे आपको नेक्स्ट केस दिया गया है विद्या एस्ट्रेस एंड 3 क्वेश्चन मार्क्स, ये डिस्प्ले करेगा जिसका नाम स्टार्ट होगा विद्या से, फिर उसके बाद कोई कैरेक्टर होगा, देन उसके बाद कोई एक्सटेंशन होगा, वो भी 3 कैरेक्टर्स का, राइट. सॉर्टिंग फाइल्स. Sorting the desktop items means arranging them in a proper order. Windows lets you sort files by name, size, item type and date modified. Sorting helps in easy retrieval of the required files. There are 4 ways we can sort a list of your files. अच्छा देखिए, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंज करना, जो आपके डेस्कटॉप पे आइटम्स है ना उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना. तो देखिए, क्योंकि सॉर्टिंग से क्या होता है कि जो हमें जो भी फाइल चाहिए होती है वो हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे, 4 तरीके इसके. नंबर 1, नेम. सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन ऑर्डर्स फाइल्स अल्फाबेटिकली बाय फाइल नेम. Size, arrange files in descending order of file size. Item type, groups the files based on their type. सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकली जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली आपकी फाइल नेम अरेंज हो जाएंगी. साइज़ में डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा आपका फाइल साइज़, और आइटम टाइप में जो फाइल्स होंगी वो ग्रुप्स होंगी उनके टाइप पे बेस्ड. एंड नंबर 4, डेट मॉडिफाइड. ऑर्गेनाइजेज फाइल्स अकॉर्डिंग टू द date that were last modified. Let us sort the files in alphabetical order. अब डेट मॉडिफाइड में मतलब फाइल्स आपकी ऑर्गेनाइज होंगी अकॉर्डिंग टू द डेट.
देखिए कैसे हम सॉर्ट करेंगे फाइल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. अ शॉर्टकट मेन्यू appears. Point to the sort by option and click the name sub option. The icons will be arranged in an alphabetical order. सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, ये जो ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप का शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हुआ. फिर हम करेंगे ये जो सॉर्ट बाय ऑप्शन है इसमें पॉइंट एंड देन क्लिक करेंगे नेम सब ऑप्शन. अब देखिए आपके जो आइकन्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए. Working with multiple applications. Sometimes we may need to work with multiple applications at the same time. For example, the instructor has asked us to create an image on the topic list of presidents of India. We may require some help from the internet to collect information on the topic. In this scenario, we are required to work with two windows at the same time, MS Paint and web browser. देखिए कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करना होता है सेम टाइम पे. जैसे कि इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा कि इमेज बनानी है और टॉपिक हमें मिला है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो हमें इसमें इंटरनेट की हेल्प चाहिए होगी जिससे कि हम इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. तो इस केस में क्या होगा, हम दो विंडोज़ पे काम करेंगे सेम टाइम पे, MS पेंट पे एंड वेब ब्राउजर पे. Windows 7 allows us to open several applications and work in them at the same time. और Windows 7 हमें अलाउ करता है कि हम सेवरल एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं और सेम टाइम पे काम कर सकते हैं. ओके, लेट अस डू इट प्रैक्टिकली. तो चलिए ऐसे करके देखते हैं. ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बाय सिलेक्टिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स पेंट. ओपन गूगल क्रोम by double clicking on its icon on the desktop. Now right click anywhere on the blank portion of the taskbar. Click on the show windows side by side option from the shortcut menu. Both application windows will be displayed side by side. Now we can browse information on the topic simultaneously while working in the graphics software. देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप Microsoft PowerPoint को ओपन करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड देन पेंट. ओके, अब आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन किया, डबल क्लिक करेंगे इसके आइकन पे. ओके, फिर हम कहीं पे भी राइट क्लिक कर देते हैं. अब इसमें क्लिक करना है शो विंडोज साइड बाय साइड. अच्छा, अब देखिए दोनों ही एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो रही है साइड बाय साइड. अब हम ब्राउज भी कर सकते हैं और हम काम भी कर सकते हैं, है ना, ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे. Recap. Windows Explorer is an application that provides detailed information about files, folders, and drives. Sorting files or items means arranging them in a proper order. Example, by size, name, type, and date. Windows 7 allows us to open and work in several applications at the same time. I hope children, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.